ڈاکٹر سید فاروق بخاری، پروفیسر امر سنگھ کالج. کتاب کا نام ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ کس کتاب سے میں نے یہ واقعہ لیا ہے. اللہ نے اس خطۂ کشمیر کو جو اسلام کی دولت عطا کی ہے، آج کی نئی نسل کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ یہاں اسلام کیسے آیا. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ جواب: نئے سرے سے ہسٹری لکھی جائے گی، اس میں دکھایا جائے گا کہ یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دے کر مسلمان بنایا. نئی ہسٹریاں لکھی جائیں گی، اس میں دکھایا جائے گا کہ لوگوں کو جبرن کنورٹ کرایا گیا. اس نئی ہسٹری کی تھیوریوں کا آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کے پاس اپنی معلومات صحیح نہ ہوں. کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کشمیر کی اس سرزمین کو اسلام کی دولت ملی ہے. کسی پر کوئی جبر، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں. یہاں کے لوگوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا. نہ کوئی باہر سے آنے والا کوئی پیسہ لے کر آیا تھا، نہ باہر سے آنے والا کوئی تلوار لے کر آیا تھا، نہ باہر سے آنے والا کوئی پشر ڈالنے والا تھا. باہر سے آنے والا ایک شخص پہلا جس کے ذریعے سے یہاں اسلام کی بنیاد پڑی ہے، اس کا نام تھا سید عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ. یہ چائنا سے آئے تھے اور یہاں کشمیر میں جب پہنچے ہیں اس وقت یہاں کا بادشاہ رنچن اپنی مرضی سے مسلمان بنا ہے. باہر کا آنے والا مسافر کون سی تلوار چلا تھا اس میں؟ وہ تو مسافر تھے اور نے دعوت دی ان کو اسلام کی، اور اسلام کا جب تعارف کرایا ہے تو رنچن مسلمان ہوا. اس وقت کیا حالات پیش آئے ہیں وہ ہسٹری آپ کو پڑھنی ہے. نمبر 1. نمبر 2 پر جو بڑی شخصیت کشمیر میں آئی ہے جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پیدا ہے وہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ اور نبی کے منصوبے کے مطابق یہاں کشمیر میں اسلام پہنچا ہے. یہ میں جب بیچ میں لفظ بول رہا ہوں نبی کا منصوبہ، اب اس کو ڈیٹیل میں سمجھا نہیں سکتا، شارٹ میں بتاتا ہوں. شاہ ہمدان جوانی میں ان کے استاد کا نام تھا علاؤالدولہ سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ. شاہ ہمدان کے استاد ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں ان سے. اسی بیچ میں شاہ ہمدان کو خواب میں زیارت ہو گئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے فرمایا تم کامل نہیں بن سکو گے تب تک جب تک تم محمود مزدقانی کے پاس نہیں جاؤ گے. محمود مزدقانی. اب یہ بیدار ہو گئے تو ڈھونڈ رہے کون ہے یہ محمود مزدقانی. معلوم کرتے کرتے پہنچے ان کے پاس. جب ان کے پاس پہنچے تو ایک دم وہ کھڑے ہو گئے، کہنے کہ مجھے تو آج رات ہی حضور نے زیارت میں ارشاد فرمایا میرا بیٹا سید علی آ رہا ہے، اس کی تربیت کر. تو محمود مزدقانی کو اللہ کے نبی نے خواب میں بتایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تمہارے پاس، اور ادھر سے شاہ ہمدان کو فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ محمود مزدقانی سے پھر فیض حاصل کیا، علم، روحانی تربیت، اخلاق، دعوت کو اصول، لوگوں کو اسلام پیش کرنے کے طریقے، یہ تمام انہوں نے ان سے سیکھے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے یہ واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، بلکہ بعض دفعہ لوگوں کو ذہن میں آتا ہے خبر بنا کہ کیا پتا چاہتے کہ. جواب اس کا یہ ہے، ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. یہیں سری نگر شہر میں ایک سکالر گزرے ہیں، ان کا نام تھا ڈاکٹر سید فاروق بخاری. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی وفات ہو گئی. ان کے والد کا نام تھا مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری. تو مولانا قاسم شاہ بخاری کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر سید فاروق بخاری. سید فاروق بخاری نے PhD کیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں جو ان کے استاد تھے مولانا سید اکبر آبادی، اس نے اتفاق میں نے بھی ان سے پڑھا ہے. سید فاروق بخاری صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی میں PhD کی تھیسس لکھی تھی علامہ انور شاہ صاحب. خیر، سید فاروق بخاری صاحب کشمیر آئے ہیں، امر سنگھ کالج میں پروفیسر تھے. اس نے کشمیر کی ہسٹری کو پورا پی لیا تھا. وہ کہتے تھے کہ کشمیر کی ہسٹری نے میری رگوں سے وس کھینچی. ایک ایک ٹاپک اس نے پڑھا تھا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. انہوں نے تقریباً 10 کتابیں لکھی ہیں کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا. تقریباً 10 کتابیں، 3-4 میں نے بھی پڑھی. ان میں سے ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. میں ریفرنس دے رہا ہوں، ڈاکٹر سید فاروق بخاری، پروفیسر امر سنگھ کالج. کتاب کا نام ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ کس کتاب سے میں نے یہ واقعہ لیا ہے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। हज़रत ने फरमाया तुम फलाने के पास जाओ, तब तक तुम कामिल नहीं बन सकोगे। और उसके बाद उसको भी ख्वाब में आपने फरमाया कि मेरा बेटा आ रहा है तुम्हारे पास और उसकी तरबियत करना। शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने जब एक तरह से अलाउद्दौला सिन्नानी से पढ़ा था, मुज़दकानी शेख मुज़दकानी से पढ़ा, और उसके बाद तैयार होकर के कश्मीर आए। और कश्मीर जब आए हैं तो यहाँ के बादशाह से मुलाकात की, और बादशाह उस वक्त मुसलमान था, मगर कश्मीर के तमाम लोग गैर मुस्लिम थे। बादशाह मुसलमान तो चंद हजार मुसलमान थे। उसके बाद शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने इस्लाम की दावत का काम किया, और वो गाँव में जाते थे, लोगों को जमा करते थे, इस्लाम का पूरा तारुफ कराते थे, अल्लाह की ज़ात का तारुफ, नबी की ज़ात का तारुफ, इस्लाम की खूबियाँ, और इंसान कैसे अच्छा इंसान बने, ये सारी बातें जब वो बयान करते थे तो गाँव के लोग खटाखट मुसलमान होते थे। ऐसा भी पाया गया कि शाम को ये हजरत एक गाँव में पहुंचे, रात में गाँव वालों में तबलीग की, सुबह तमाम ने कलमा पढ़ा, उसके बाद वहां से आगे अगले गाँव में चले। इस तरह से पूरे कश्मीर का उन्होंने दौरा किया, और हर जगह उनको खानकाहें बनाई, ताकि खानकाह मोहल्ला श्रीनगर, खानकाह मोहल्ला त्राल, खानकाह मोहल्ला शोपियान, खानकाह मोहल्ला लद्दाख, खानकाह मोहल्ला सोपोर, जहां वो खानकाह मोहल्ला नहीं, वो इस्लामिक सेंटर होते थे। नाम उसका उस जमाने के हिसाब से उन्होंने रखा खानकाह, लेकिन असल में वो इस्लामिक सेंटर। इस्लामिक सेंटर का मतलब होगा यहां लोग रहेंगे, जिनको इस्लाम समझना होगा वो बैठ कर समझेंगे, जिनको शेल्टर की जरूरत होगी उनको शेल्टर मिलेगा, जिनको खाने का इंतजाम नहीं होगा उनके लिए खाने का इंतजाम करेंगे, उनके लिए रहने का इंतजाम करेंगे, उनके लिए उनको इंडस्ट्री सिखाने का इंतजाम भी करेंगे। चनाचे शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला जब यहाँ कश्मीरी मुसलमान हो गए, इसके बाद फिर वापस गए, और वापस जाकर के वहां से 700 आदमियों को लेकर आ गए। उनमें तमाम इंडस्ट्री के लोग थे, कालीनबाग, शालबाग, पेपरमाशी, हत्ता के ठाठे। ये जो यहाँ कश्मीर में तांबे का बर्तन साजी है, ये सिर्फ बर्रे सगीर में कश्मीर में है। तांबे का बर्तन यही बनता है और यही उसकी मार्केट है। आप यहाँ के ताशनार लेकर दिल्ली में जाएंगे, कोई भी खरीदेगा। वहां वाले तो कहेंगे हम तो चीनी के बर्तनों में खाना खाने वाले हैं। ये कश्मीरी हैं जो आज भी खा रहे हैं, किसमें? तांबे के बर्तनों में। तो तांबे के बर्तनों की इंडस्ट्री शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने लाई थी। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था सैयदुस सादात सालार अजम, जो सालार अजम तो सरदार सैयदुल सरदार दस्ते ओ मेमारे तकदीर उमम। कहता है ये ऐसा इंसान है कि ये किसी कौम को चाबी लगा देता है, उस कौम को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। दस्ते ओ मेमारे तकदीर उमम। खैर मजीद तफसीर का वक्त नहीं है। शाह हमदान वापस चले गए। वापस जाने के बाद उनका इरादा था फिर आने का, लेकिन रास्ते में मौत का वक्त नजदीक आ गया, तो समझ गए कि अब मैं वापस कश्मीर नहीं जा सकूंगा। तो इसलिए अपना बेटा, उस बेटे का नाम था मोहम्मद, नेचुरल नाम इस मोहम्मद, अपने कुछ मुरीदों को, शागिर्दों को जमा किया, कहा मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है। इसको पढ़ाना भी, ये काबिल भी बनना चाहिए, आलिम बनना चाहिए, सूफी बनना चाहिए, रूहानियत इसके अंदर आनी चाहिए। तैयार करके वापस वो कश्मीर भेजो, ताकि वो कश्मीर में बचा खुचा काम ये पूरा करेगा। चुनाचे साल तक 12 या 14 साल की उम्र में मोहम्मद हमदानी उस्तादों के हवाले हो गया। 22 साल की उम्र में मोहम्मद हमदानी अनमेरिड जवान लड़का जब कश्मीर आया है तो सारा कश्मीर इस्तेमाल के लिए खड़ा हो, पूरा कश्मीर इस्तेमाल के लिए खड़ा था। पीर साबुन ने चुका, पीर साबुन नहीं चुका। चुनाचे उस जमाने में हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह ताला जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, जब मीर मोहम्मद हमदानी से मिले थे तो हजरत मैं आपका बुगल कौन बुरी, तो मीर मोहम्मद हमदानी छोटा लड़का 22 साल का, और शेख नूरुद्दीन वली उनके मुरीद हो गए। और मीर मोहम्मद हमदानी ने बाद में उनको कहा मैं खिलाफत। खैर तो मीर मोहम्मद हमदानी जब कश्मीर में तशरीफ लाए तो उन्होंने अपने अबा जान का रहा सहा काम पूरा किया। उस रहे सहे काम में ये भी वाक़या पाया गया कि जनाब यहाँ बादशाह, उस वक्त मुझे इस वक्त याद नहीं है, उस वक्त बादशाह शहाबुद्दीन था या कुतुबुद्दीन था या अलाउद्दीन, कौन से थे ये हिस्ट्री में मिलेगा। उसका वजीर आजम नॉन मुस्लिम था जिसका नाम था सिरबार। बादशाह मुसलमान है, वजीर आजम उसका नॉन मुस्लिम, उसका नाम था सिरबार। मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह ताला से जब इसकी मुलाकात हुई तो मीर मोहम्मद जबरदस्त साहिब इल्म था और गुफ्तगू करना जानते थे, वो मंतिक भी, फलसफा भी, सब कुछ। तो सोहबत उनके साथ मिलने के बाद फिर वो मुसलमान हो, पहले वो वजीर आजम मुसलमान, और मुसलमान बनने के बाद उसने दरख्वास्त की कि हजरत मैं तो आपका मुरीद, आप मेरे पीर, मगर साथ में मेरी दरख्वास्त ये है कि मेरी बेटी आप निकाह में कबूल कर लें। तो मीर मोहम्मद हमदानी का निकाह हुआ वजीर आजम सोहबत, जिसका नाम अब सदरुद्दीन रखा गया, उसकी बेटी के साथ। पहले वही वजीर आजम सब नाम था, लेकिन अल्लाह का फैसला है 2-3 साल के अंदर वो खातून वफात हो गई, जिंदा नहीं रह सकी। बहरहाल मीर मोहम्मद हमदानी तशरीफ लाए,
ईदगाह उसी ने खड़ा, मलका का कब्रिस्तान उसी का खड़ा किया हुआ है, और कितने कारनामे अंजाम दिए वो तारीख में पड़े। तो हमको कश्मीर में इस्लाम 3 सेटअप पर पहुंचा है। नंबर 1 अब्दुल रहमान बुलबुल, नंबर 2 शाह हमदान, नंबर 3 मीर मोहम्मद हमदानी, और उसके बाद फिर यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमा, सूफिया, बुजुर्ग इतने बड़े बड़े पैदा हुए हैं। एक जमाना ऐसा था कि कश्मीर में हदीस का माहिर इतना बड़ा इंसान था कि पूरे बर्र सगीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कहीं नहीं था, उतना बड़ा। उसका नाम था शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाहि अलैह, जो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का भी उस्ताद है। खैर, तो कश्मीर में इस्लाम कैसे पहुंचा? जितने हमारी ये नौजवान नस्ल हैं, जैसे जब तुम 10 किस्म के टॉपिक पढ़ते हो, 10 किस्म के सब्जेक्ट पढ़ते हो, साथ में ये भी पढ़ो इस्लाम हमारे यहाँ कैसे पहुंचा है, वरना आगे चल करके आपको वो हिस्ट्री बताई जाएगी और जिसकी हिस्ट्री को पढ़ा करके फिर कहा जाएगा क्या साहब यहाँ जबरन इस्लाम फैला है, लोगों ने दबाव डाला है, लोगों को लालच दिया गया है, आप कन्वर्ट हो जाओ, आप वापस आ जाओ। ये मुहिम आ सकती है और उस वक्त आप इस मुहिम का मुकाबला तब कर सकेंगे जब आपको अपनी हिस्ट्री मालूम होगी। जिस कौम को अपनी हिस्ट्री मालूम नहीं, उस कौम की जड़ें निकल जाएगी। काश ये बात समझ में आ जाए। बस मैं ये 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल और इस्लाम की दौलत और नियामत हमको कैसे मिली है, और उसमें न कहीं बीच में दबाव रहा है, न कहीं तलवार चली है, न कोई लालच दिया गया, न कोई जबर किया गया। और हम ऐलान करके कहते हैं अगर किसी इंसान को जबरन मुसलमान बनाया गया वो मुसलमान है ही नहीं। अगर किसी इंसान को जबरन मुसलमान बनाया गया वो मुसलमान है ही नहीं। मसलन ये शख्स है, कोई आदमी इससे कहेगा या तो मुसलमान बन जा वरना तुझे मारेंगे, इसने सोचा जान बचाने के लिए मुझे मुसलमान बनना चाहिए। उसने कहा जनाब बताओ क्या करना है, कहा पढ़ो कलमा। उसने कहा पढ़ाओ जी कलमा। हमने उसको कलमा पढ़ाया, दिल में कहता है मैं तो जान बचाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब इस्लाम से पूछेंगे ये शख्स मुसलमान है, इस्लाम के लिए नहीं। इस्लाम से पूछेंगे जनाब इसने तो कलमा पढ़ लिया, जवाब है कलमा बाद में, पहले दिल में आना चाहिए। ईमान पहले दिल में, बाद में जुबान पर आया। दिल में नहीं जुबान पर आया, इस्लाम उसको कहते हैं मुनाफिक। और कुरान ने साफ ऐलान करके कहा कि जिसके दिल में कुफ्र है, जुबान पर कितना है वो ईमान का ऐलान करे वो मुसलमान। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई जबर नहीं। इस्लाम में कोई लालच की बेस पर जो मुसलमान बनेगा वो मुसलमान नहीं, प्रेशर की बेस पर जो मुसलमान बनेगा वो मुसलमान नहीं, धोखा देकर जो मुसलमान बनेगा वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान साफ शफाफ, हमको न प्रेशर की जरूरत है न पैसा खर्च करने की जरूरत है। इस्लाम अपनी सच्चाई से खुद ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आज भी वाकया सारी दुनिया में होते हैं किस तरह से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। कल ही मेरी मुलाकात एक बड़ी शख्सियत के साथ हुई जो सारी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं। उन्होंने भी बताया कैसे कंफ्यूजन करके कैसे लोगों को इस्लाम से दूर किया जाता है, और जो ही कंफ्यूजन खत्म हो जाता है लोग तेजी के साथ इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है, दुनिया भर में ढंढोरा है कि मुसलमान इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है। दुनिया भर में ढंढोरा है कि इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है, और यूरोप में मर्दों के मुकाबले में औरतें इस्लाम की तरफ आ रही। अगर ये जुल्म है तो वो जुल्म में क्यों आना चाहिए? वो तो फ्री लाइफ गुजार रही है ना, तो फ्री लाइफ छोड़ करके वो सेफ लाइफ की तरफ, मसला फ्री और अनफ्री का नहीं है, मसला सेफ लाइफ और अनसेफ लाइफ का। तुमको लगता है कि हम इस्लाम में आकर के सेफ हो जाएंगे, और वाकई बहरहाल टॉपिक खत्म हो गया। अल्लाह ताला इन बातों को कहने वाले के लिए भी, सुनने वाले भाइयों के लिए भी मुफीद से मुफीद तर बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।